Hello everyone, welcome to Startup Academy. So, in today's lecture, we shall be covering a new topic, that is agriculture. Agriculture is again an important unit for your ISS and IES examinations. So, we shall be covering all the important topics, and the PDF that I shall be sharing with you will contain all the important information, all the detailed notes, and they will be very concise. You can make the language on your own. We shall talk about the language um, when we will talk about PYQs in the PYQ session again. So let's start with agriculture. So you can write unit. I don't think any pen would be visible on this. Which pen shall I take? Okay, let me just take this pen. It shall be okay. Yeah, we can say that unit agriculture. Okay, we all understand what is agriculture, its basic definition we all know. So let me, if you want me to write the basic definition, I can write the basic definition. So when we talk about agriculture, we can write its basic definition because sometimes whenever you need to start your answer, you basically start with writing the basic definition or explaining the term you will be using forward in your answers. अब देखो एग्रीकल्चर होता क्या है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर हम खेती बाड़ी जान लेते हैं, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स का उगना, ये सब चीजें जहां पर भी इंक्लूजन ऑफ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड प्रोड्यूसिंग द एसेंशियल आइटम्स और द फूड आइटम्स, तो उसी चीज को आप बोल देते हो क्या, एग्रीकल्चर. तो एक तरीके का एक आर्ट होता है बाय विच यू विल बी ग्रोइंग समथिंग दैट विल बी वैल्यूएबल, उसी को बोलते हैं क्या, एग्रीकल्चर. सो वी कैन से दैट it is an art, or you can say science, which includes sowing seeds, यहाँ पे लिख सकते हैं cultivating crops, yielding various essential items like food and fiber. या फिर आप लिख सकते हो क्या, it is again an invasive technique by which you can raise livestocks, क्योंकि बहुत सारे खेत ऐसे होते हैं जहाँ पर यू विल बी एबल टू सी काउस, बुफेलोज, बुलक्स एंड गोट्स एंड ऑल. ठीक है, तो दिस इज अ टेक्निक विच इंक्लूड सोइंग ऑफ सीड्स, या फिर यू कैन से प्रिपेयरिंग सॉइल्स एज वेल. ठीक है, तो प्रिपेयरिंग सॉइल, देन सोइंग द सीड्स, कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, रेजिंग लाइवस्टॉक. यहाँ पर रेजिंग वी कैन राइट, instead of this we can use raising livestock, and yielding various essential items like food and fiber. So this is the basic definition. You can make your own definition, तो basic idea लग जाएगा कि agriculture basically होता क्या क्या है and what all things it includes. Now coming to the main topic, जो basically important है. ठीक है, अब एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए हमें इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर कहाँ पर टर्म जो है वो यूज होगी, हमें एग्रीकल्चर की इतनी नीड क्यों है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है एंड ऑल. तो पहला जो एस्पेक्ट है वो है इकोनॉमिक सेक्टर. एज यू ऑल नो, जो मेजर पोर्शन है इंडिया का वो कहाँ को रिलेट करता है, दैट रिलेट टू नथिंग बट फार्मिंग. बिफोर और वी कैन से प्रायर टू इंडिपेंडेंस ऑल्सो the major sector was involved in farming. So major land of India is green because of the farming factors. तो वो economy लेकर आते हैं, they add income because we produce so much of item that we can sell. तो उस वजह से the economy is increased. Then when we talk about the employment,
सिंस द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द लैंड इज इन्वॉल्व खेती की बाड़ी के अंदर, तो उस लैंड को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे हमें लोग भी लगेंगे, सो दैट दैट लैंड कुड बी अंडर गुड केयर, क्योंकि हर किसी को नहीं आती. सपोजली I am the leader of the land or I am the boss of the land, but I don't know farming. I don't know how to farm my land. I don't know how to cultivate crops on my place. So what will I do? I will hire people. So those people that are hired would be employed under me. So that is again the employment sector. When we talk about the food security, you have the surplus amount of production. तो surplus खुद हो रहा है, तो food obviously secure हो गए ना food wise. So like that. When we talk about the linkages, so it is basically the link between the industries and the normal people, because they are producing the raw materials, and that raw materials is leading towards the industries, which is coming back to the normal people or the higher people. So therefore again the employment point में you can include. नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिकल बेसिस, फिजिकल बेसिस क्या हो सकते हैं? पहला होता है रिलीफ, कि प्लेन्स की जो फार्मिंग होती है या एग्रीकल्चर के पैटर्न होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू वैलीज से, और बहुत डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू माउंटेन से. तो रिलीफ फीचर जो है वो बेसिक रोल प्ले करता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट कंडीशंस, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल पैटर्न की वजह से भी. तो इन सब की वजह से, क्लाइमेट वेरिएशंस की वजह से या फिर एटमॉस्फेरिक वेरिएशंस की वजह से वहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट एंड द सॉइल्स, अगेन ये क्लाइमेट और ये सॉइल आपके रिलेट हो सकते हैं विद द रिलीफ फीचर. सपोजिटली कोई ऐसा लैंड है जहां पर बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो देयर इग्नियस टाइप ऑफ रॉक्स होंगे जो कि आपको रेड सॉइल प्रोवाइड करेंगे. और रेड सॉइल बेसिकली क्या ग्रो करवाती है? क्योंकि वो ऑब्वियसली आयरन के अंदर रिच है, तो हम कुछ ऐसी चीजें उगा सकते हैं जो सिर्फ रेड सॉइल में होंगे. देयरफॉर सॉइल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. फिर आता है आपका वाटर रिसोर्सेज, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्या, इरिगेशन. इरिगेशन प्रैक्टिसेस. इरिगेशन के बारे में बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पर सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल वुड बी रिसीव्ड, एंड इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो क्रॉप आपने ग्रो किया है एंड द वन दैट इज ग्रोन बाय योर फ्रेंड, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड हो. तो अकॉर्डिंगली इरिगेटिंग प्रैक्टिसेस विल डिफाइन कि क्या नीड है, एंड दे विल सर्वाइव द नीड्स ऑफ द क्रॉप्स. देन वी कम ऑन टू द टाइप्स ऑफ फार्मिंग. इस टाइप्स ऑफ फार्मिंग के ऊपर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो यू कैन मार्क दिस इंपॉर्टेंट. तो चलते हैं आगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग की तरफ, जो कहता है ठीक है. टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आपके सब्सिस्टेंस फार्मिंग आ जाएगा एक, ठीक है. फिर आपके पास आ जाएगी आपकी कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग. जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है दैट विल बी द फार्मिंग दैट आई एम डूइंग इन माय किचन गार्डन. ठीक है, किचन के लिए कोई गार्डन बना लिया, इन दैट आई एम फार्मिंग. तो कम पैसे लगेंगे, कम इनपुट लगेगा, एंड द आउटपुट विल अगेन बी वेरी लेस. सो दैट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट द कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग रेफर्स टू द फार्मिंग जो बड़े एरिया पर की जाती है, not that big area but for commercial purposes, so that I can produce and I can sell it like that. Then we have the plantation farming. Plantation farming refers to you are growing just single crop, like Assam के अंदर there are plantation farming where people grow either tea or they grow either coffee or they grow either cotton. तो वो होती है only single type of crop you are using. तभी मेघालय हिमाचल प्रदेश जाना जाता है किस लिए? फॉर द एप्पल प्रोडक्शन, बिकॉज मेजर पोर्शन ऑफ द एप्पल इज कमिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. देयरफॉर वहां पर कौन सी टाइप ऑफ फार्मिंग होती है? प्लांटेशन फार्मिंग, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज को ले लिया एंड दे आर सप्लाइंग इट टू लार्ज अमाउंट. या फिर आप ले सकते हो असम की टी के लिए, तो असम किस लिए जाना जाता है? फॉर द मेजर प्रोडक्शन ऑफ द टी. सो दैट इज अगेन रेफर्ड टू एज प्लांटेशन फार्मिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट द मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग कहती है कि यू आर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स बट विद द लाइफ स्टॉक्स. तो उसको बोलेंगे क्या? मिक्स्ड फार्मिंग. तो क्रॉप कल्टिवेशन हो रहा है विद लाइफ स्टॉक. व्हेन वी टॉक अबाउट द सीजन, सीजन्स के ऊपर व्हेन यू मस्ट हैव स्टडीड दिस चैप्टर एग्रीकल्चर, तब आपने देखा होगा कि मेजर चीजें जो है वो इन्हीं दिनों पर लाई करती हैं, है ना.
तो तब के लिए ये इंपॉर्टेंट हुआ करता था, तो अब के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन अगेन मार्क इट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन दे देता है कि दीज आर द क्रॉप्स, व्हाई आर दे नोन, व्हाट टाइप टू विच सीजन दे बिलोंग, तो आपको बताना पड़ेगा दीज आर द सीजन। खारिफ क्रॉप्स क्या होते हैं, यू टेल देम, गिव द एग्जांपल, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर व्हिच दे ग्रो, व्हाई आर दे नोन एज खारिफ, तो लाइक दैट क्वेश्चंस कुड बी फ्रेम्ड। सो तीन टाइप ऑफ क्रॉप्स होते हैं, वी आर जस्ट रिवाइजिंग दीज क्रॉप्स क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, बट रिवाइज करने का तरीका ऐसा है दैट वी विल फिट इन एवरीथिंग। सो खारिफ रेफर टू मॉनसून टाइप, खारिफ, आर इज देयर, सिंस आर इज देयर, आर रेफर्स टू रेन, और रेन कब होती है, मॉनसून टाइप में। अब जहां बारिश होगी वहां पर कैसे क्रॉप्स उगा सकते हो आप, पैडी क्रॉप्स उगा सकते हो। पैडी क्रॉप का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, राइस होता है, ठीक है। तो लाइक दिस यू विल लर्न व्हेन वी टॉक अबाउट राबी, राबी और राबी के लिए हम बना सकते हैं क्या, सिंस इट इज स्मॉल, और स्मॉल कब होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब बाहर सर्दी होती है और अंदर गर्मी होती है, तो दैट रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्शन। राबी इज अ स्मॉल वर्ड, स्मॉल वर्ड के लिए आप क्या कहोगे, कॉन्ट्रैक्ट। कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट कब करती है, जब उसे सर्दी लगती है। तो सर्दियों में सबसे ज्यादा क्या उगता है, व्हेन इफ यू आर लिविंग नियर हरियाणा और यूपी, देन यू मस्ट सी कि बहुत सारे पोंगल के फेस्टिवल्स आते हैं और बैसाखी आती है। तो ये फेस्टिवल्स क्यों आते हैं, दे आर बेसिकली द कल्टिवेटिंग फेस्टिवल्स। तो कल्टिवेटिंग फेस्टिवल सबसे ज्यादा में क्या उगाया जाता है, वीट, मेज, लाइक दीज। तो आप याद कर सकते हो मीट एंड सॉरी वीट एंड मस्टर्ड। देन वी कम टू द जेड, जेड आप कह सकते हो मॉनसून का हो गया, समर सॉरी विंटर्स का हो गया। अब बचा कौन, जेड बचा, एंड जेड किसके लिए होता है, फॉर समर्स। और समर्स में उगने वाले बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो क्या, वीट, बार्ले, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो पैडी क्रॉप का याद रखना है बस आपको, पैडी क्रॉप के अंदर राइस आप इंक्लूड कर दो, बाकी आप इनके अंदर कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, इट हार्डली मैटर्स। नाउ ये खारिफ से याद करने का तरीका फिर से रिवाइज कर लेते हैं। खारिफ, आर, आर रेफर्स फॉर रेन, रेन कब आती है, मॉनसून के अंदर, और जहां पर पानी होता है वहां पर उगते हैं पैडी क्रॉप्स, पैडी क्रॉप्स में नेम विल कम ऑफ राइस। देन वी हैव द राबी, राबी इज अ स्मॉल वर्ड, स्मॉल वर्ड क्यों बना, बिकॉज इट हैज कॉन्ट्रैक्टेड, सिंस इट हैज कॉन्ट्रैक्शन फिनोमिना इन इट, therefore winter season में हुआ होगा। और आप ले सकते हो wheat and mustard, and you can also learn it with the festivals that is namely Baisakhi, Onam, Pongal, like those. Then we have the Z, क्योंकि बाकी दोनों सीजन कवर हो चुके हैं, तो only which season is left, the summer season is left। तो summer season के लिए you have short duration summer season which again gives you crops like wheat, barley, etc etc। देन वी कम टू द मेजर क्रॉप्स। अब कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो उगाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पर चलते हैं दोबारा। ये कहता है मेजर क्रॉप्स अगर आपको उगाने हैं तो आप कौन कौन से क्रॉप्स उगाओगे। देखें मेजर क्रॉप्स में क्या क्या है हमारे पास। मेजर क्रॉप्स में कहता है कि अगर आपको ग्रेन्स उगाने हैं तो दीज आर द ग्रेन्स। लोग क्या खाते हैं सबसे ज्यादा, रोटी, चावल, दाल, ठीक है। तो दीज आर द स्टेपल फ्रूट्स, फूड सॉरी क्रॉप्स कह सकते हो, फूड्स कह सकते हो, क्योंकि वेजिटेबल्स ज्यादा उगती हैं। तो आउट ऑफ वेजिटेबल्स वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉप्स। क्रॉप्स में भी पीपल आर ईटिंग राइस एट द टॉप लेवल, देन द व्हीट एट द टॉप लेवल। रोटी तो सभी खाते हैं, ठीक है। तो विद दैट रोटी, राइस, व्हीट, मिलेट्स, बार्ले, ये जो है वो स्टेपल फूड है, ड्यू टू विच ये लार्ज अमाउंट में उगता है। बिकॉज एग्रीकल्चर इंडिया की, कह सकते हो एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर हो रहा है, तो इंडिया के लोगों को ज्यादा सपोर्ट करे तो मेजर अमाउंट में कौन मिलेगा, राइस एंड व्हीट। देन वी हैव द कोर्स सीरियल। कोर्स सीरियल वो सीरियल्स होते हैं जो थोड़े से ड्राई होते हैं, जिनको आप छिलके के साथ खाते हो। द आउटर कवरिंग इज नॉट रिमूव्ड, लाइक इन व्हीट you give it for mixing and you give it for grinding and all, but when it comes to millets they are quite we can say uh, more healthy as compared to other products, because they require less amount of environmental conditions to grow, so they can grow in harsh conditions as well, therefore they are very cheap and they give you large nutritious value.
So millets are grown, so something that you eat without removing the outer covering, so those are known as coarse. Then you have pulses. Pulses are again important because they are rich in proteins. When we talk about pulses, we talk about dals majorly. Then you have oil seeds. Oil seeds हमें पता है मस्टर्ड्स की बात कर रहे होगे, तो मस्टर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। कैश के लिए वी नो कैश्यू होता है। कैश्यू अगर याद आ रहा होगा तो महंगी सॉइल में उगता था, जो कि होती थी आपकी लेटराइट सॉइल। ठीक है, तो ऐसे भी याद करके रखना है। कैश क्रॉप्स के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हो गए आपके कॉटन एंड शुगर केन। सी फॉर कैश, सी फॉर कॉटन। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लांटेशन क्रॉप्स, कोई पर्टिकुलर सिंगल एक क्रॉप ही उगाया जाए तो दैट इज रेफर टू एज द प्लांटेशन क्रॉप। दैट कुड बी योर टी, कॉफी, रबर एटसेट्रा। सो दीज आर द मेजर कैटेगरीज। आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो कि इंडिया के अंदर कैसे कैसे क्रॉप्स उगते हैं। देन नहीं नहीं, हाँ, फिर बाकी हमारी आती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ क्रॉप्स के बारे में पढ़ा है। व्हाट आर क्रॉप्स, व्हाट इज एग्रीकल्चर, कितने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं, कितने कितने सीजन्स के अंदर उगते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी शैल कवर अबाउट दीज इरिगेशन प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था, क्या इंपॉर्टेंस है, और उसी के बाद आपको थोड़े बहुत पीवाईक्यूज भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ये पीवाईक्यू का डिस्कशन हम करेंगे कि क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो दिस वी विल डिस्कस। और उसी के बाद एक समरी भी होगी दैट वी विल डिस्कस कि कौन से क्रॉप्स हैं, कौन कौन से एरिया में मिलते हैं, तो दैट यू कैन रेफर डायरेक्टली। और फिर इसके बाद हमारा जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ वी शैल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू। एंड रिमेंबर बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास, रिवाइज करके आना so that everything stays in your mind. So thank you and keep watching. Startup Academy presents Lakshya 2027, an exclusive batch designed only for serious ISS aspirants.